Can you hear me? Yes, sir. Today we are going to extend the knowledge related with the control structures. In the last lecture, we focused on how the program structure is. So the program structure is void, main, void with a bracket. In the bracket, we have statements. All statements should be end with the semicolon. That is the structure of program. We have a preprocessor directives. We have comment lines that can also be written at the top of the program, right? But today we move towards important segments of the program, which is known as control structures. So before I move, I can start the recording so that I can record the lecture and will send you and share you for the future reference, right? So wait a minute, I will start the recording. Hello everyone, today we are going to start the discussion on the control structure in a programming language. There are the three elements in control structures. One is called sequential logic. Second one is called selection logic. And the third one is known as repeated logic. Repeated logic is also known as iterative logic. Iterative logic. And selection logic is also known as conditional logic. And the first one is a plain logic, which is default logic. Default logic means we do not have to specify and pass any special command to implement the sequential logic. The program lines, this is my source code. Source dot cpp. This is my C++ code file. In this file, I have statements, statement number 1, statement number 2, and the last statement. And these statements are here in this file. When I execute this statement, when I execute or run this statement, this code, then compiler will execute the first line of code. The action on the line number 1 has been performed. After completing the action on the line number 1, the action on the line number 2 is to be considered, and the same way the last line will be executed. So this type of execution is known as sequential logic. Means the program lines will be executed in the manner or in the order in which they appear in your code file. The lines which appear as the first line in your code will be executed first, and the line which is found in the last statement of your source file will be executed in the last. So this type of logic is known as sequential logic. So that is why it is the default logic, because when we run the program compiler will automatically
follow this sequential pattern of the program. If you want to break this logic at any specific point, what that specific point is, suppose I am going to amend this file and I have a list of work which I want to execute at a certain condition. If that condition fulfilled, then I have to perform that task, otherwise I will not. Line number 1 will be executed, line number 2 will be executed, and in line number 3 I have if x is greater than 2, then I have to repeat this code. So this is a code segment. This is a code segment which will be executed if the value of x is greater than 2. This code segment will not be executed if the value of x is less than or equal to 2. So there are now the two options. When the compiler found the first line, it is executed. When the compiler found the second line, it's also be executed. When the compiler found the third line, it is a conditional line. Conditional line means it has a group of statement. This is the group of statement under this if. If this condition fulfill, then this code of command will be executed. If this condition is not fulfilled, then this code will not be executed. After completing this, the remaining lines will be executed in a linear pattern. Now here the program ends. This is my source file. So when I execute this source file, line 1, 2 will be executed by sequential logic. When it come to the line number 3, it check condition, x is greater than 2 or not. If x is greater than 2, then these 3 lines will be executed. After completing these 3 lines, this line and then the last 3 lines will be executed. If this condition is not fulfilled, then after completing line number 1 and 2, these 3 lines will be executed. So I'm just referring the line numbers here so that I can explain it in detail. Line number 1, line number 2, this is line number 3, and it is the segment of line 3A. I am referring it as a 3A. 3A is not a single command. 3A is a group command. This group command has 3 lines. This is line number 4, this is line number 5, this is line number 6. So by default, 1, 2 executed. When it comes to the line number 3, check the condition. If the value of x is greater than 2, then all of the 3 lines, 3A, B, C will be executed. After completing these 3 lines, then 4, 5, 6 will be executed. On the other hand, after completing line number 1 and 2, if the condition fail, means x is not greater than 2, x is either equal to 2 or x is less than equal to 2, then these 3 lines will not be executed. Control will pass to the line number 4, 5, 6. So line number 1, 2, 4, 5, 6 will be executed if condition is true. If condition is true. If condition is false. If condition is true, then line number 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 will be executed if condition is true. Condition is true. So we have a set of work which we want to execute on a certain condition. I am giving in another example here for that. Suppose I have a list of command in my real life. I think I gave this example earlier to you. And that is what, suppose in a daily routine, this is your daily routine. File name is main.cpp or main function we have here. This is your daily routine. Monday
You have a list of work on Tuesday, you have another list of work, but this is your daily routine. But on Friday, if Friday, the routine is changed, Friday prayer. So we do not have to offer Friday prayer on any other day if it is not Friday. Friday prayer is there. So on the daily routine, you have to work for line number 1 and line number 2, the line number 3. And if it is Friday, you have to offer the prayer for Friday. And then move next on other work you have to do. If it is Saturday or Sunday, if it is Sunday, then you have to do another list and close the line. So you can see the condition here. These 3 lines will be routine lines. At line number 4, it checked. If it is a Friday, then you have to move to the Friday prayer, and then these lines will be executed. If it is a Sunday, you have to do these type of work. Otherwise, if it is not a Sunday, you have to skip these type of work, and so on. So this is called selection logic. Now you can raise questions. I paused the recording. You can ask question regarding the control structures. अभी मैंने 2 समझाए, तीसरे पे अभी मैं आया नहीं हूँ. तो आप उर्दू में भी सवालात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग को रखना चाहता हूँ कि वो इंग्लिश में रहे. जी बोलिए. Any question? सर सीक्वेंशियल वाला थोड़ा सा बता दें. देखिए सीक्वेंशियल वाले में ये डिफॉल्ट लॉजिक है, खुद ब खुद चलेगी. आप प्रोग्राम रन करेंगे खुद ही चलेगी. मिसाल के तौर पर आपके दिन के रूटीन क्या है. सुबह उठे आप, अब मैं लिस्ट ऑफ वर्क बता रहा हूँ जो आपको दिन में करने होते हैं. सुबह उठते ही आपने जो है वो नमाज फजर करी. नमाज फजर के बाद आपने बाकी रूटीन, टीथ ब्रश करना है, नाश्ता करना है. नाश्ता करने के बाद ये सब डेली रूटीन है ना. ये तो खुद ब खुद होने शुरू होते हैं. दिन शुरू हुआ, खुद ब खुद ये काम आपने शुरू कर दिए. कोई आपसे कहेगा कि भाई ये काम कर लो, तो जो रूटीन वर्क हैं वो तो डेली खुद ब खुद ही होते चले जाते हैं. इसके लिए इसको डिफॉल्ट लॉजिक कहते हैं. तो कंपाइलर भी ये करता है कि आपने अगर एक फाइल में 10 काम लिख दिए हैं ये लाइन से, तो एक एक करके कंपाइलर उन 10 कामों को आपके मुकम्मल कर देगा. दैट्स ऑल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल लॉजिक. ये जिस सीक्वेंस में आपने कामों को लिखा, उस सीक्वेंस में वो काम मुकम्मल हो जाएंगे. ठीक है. अब मैं एक और छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको. मिसाल के तौर पर आपने अपने, ये मैं कुछ इरेज कर दूं. ये एक लिस्ट ऑफ वर्क है जो आपने उसको दी, अपने सर्वेंट को दी. उसमें आपने लिस्ट में कुछ काम लिख दिए और वो काम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उस क्या काम आपने उसको लिख के दिए, वो कैसे उस पर काम करेगा. मिसाल के तौर पर आपने उससे ये कहा कि भाई आप पहले जो है परचेज 1 kg शुगर, एक काम हो गया. फिर आपने उसको कहा कि जी मूव टू द मिल्क शॉप एंड बाय 2 kg मिल्क. ये भी नॉर्मल काम था, ये हो गया. फिर आपने तीसरे स्टेप पे उससे ये कहा कि आपने उसको एक बिल दिया और वो बिल आपने कहा बैंक में जमा करा दे. इफ बैंक ओपन, अब ये कंडीशन आ गई, तो सबमिट बिल एंड क्लोज. बाकी और काम आ गए भी. आपने उससे कहा कि भाई तुम परचेज सम मेडिसिन्स एंड सो ऑन. दैट्स ऑल. तो आप देखें पहला काम कंडीशनल नहीं है, बस वो जाएगा और शुगर खरीद लेगा. दूसरा काम कंडीशनल नहीं है, वो जाएगा मिल्क शॉप पे 2 kg मिल्क खरीद लेगा.
तीसरा काम कंडीशनल है। उससे हमने कहा था कि अगर बैंक खुला हो तो तुम जमा करा देना, वरना नहीं कराना। तो वो बैंक पे गया, उसने देखा बैंक खुला है या बंद है। अगर खुला है तो उसने जमा कराया, फिर उसने मेडिसिन खरीदी, वापस आ गया। लेकिन अगर बैंक खुला नहीं है तो उसने बिल सबमिट नहीं कराया, बगैर बिल सबमिट कराए मेडिसिन परचेज की। तो शुगर का खरीदना, मिल्क का खरीदना, मेडिसिन का खरीदना, ये 3 काम तो सीक्वेंशियल हैं, सीक्वेंशियल से होंगे, ये वो सीक्वेंशियली कर लेगा। लेकिन एक काम आपने कंडीशनल दिया है उसको कि चेक कर लेना, अगर बैंक खुला हो तो जमा कराना, नहीं खुला हो तो छोड़ देना भाई। तो ये कंडीशनल लॉजिक है, बाकी सीक्वेंशियल लॉजिक है। बताएं अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है सर, थैंक यू। सवाल किसी का? देखो इंटरेक्टिव स्टूडेंट अच्छे लगते हैं, मैं खाली मैं ही बोलता रहूं ये तो मुनासिब नहीं लगता कि बस मैं वन साइडेड आपको बोलता जाऊं और आप लोग खामोश बैठे रहें। अरसलान, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद फहद, मोहम्मद हसन, सारे लोग क्या मीटिंग में है ही नहीं, है तो बस मीटिंग लगाई है और उसके बाद इधर उधर कहीं चले गए हैं। जी बोलिए भाई। अब जो नहीं बोलेगा या तो मैं एब्सेंट मार्क कर दूं, क्या करूं उसका? आप लोग मैं एक फैसला करके बता दें। सर जी हाँ, सर ये थर्ड कंडीशन है बैंक वाली, लाइक इसके अलावा कोई और कंडीशन हो जो कि ऊपर किसी स्टेटमेंट से रिलेट कर सकती हो, ऐसा भी ऊपर से रिलेट नहीं कर, हाँ कर सकती है, ऊपर से रिलेट कर सकती है। ठीक है, अच्छा सवाल किया इन्होंने कि ये कंडीशन मैं ऐसी लगा दूं जो ऊपर के किसी काम से रिलेट कर सकती है। हाँ ऐसा हो सकता है। आप म्यूट कर लें, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ये कहा आपसे, ऊपर से मैंने ये कहा एटीएम से ड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम, ड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम। ठीक है, अब देखें उसने पहला काम किया, शुगर खरीदी, मिल्क खरीद लिया। जब वो एटीएम पे गया तो हो सकता है मशीन से पैसे निकल आए हों, हो सकता है ना निकले हों, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मशीन से पैसे निकल आए तो फिर उसने देखा बैंक खुला है या बंद है, क्योंकि बैंक खुला बंद होने से एटीएम का ताल्लुक नहीं होता, एटीएम इंडिपेंडेंट वर्क करती है। तो एटीएम से पैसे निकाले, उसने नहीं निकले, बैंक गया, बैंक खुला था, तब भी बिल नहीं जमा करा सकेगा। तो आप देखें बैंक बिल जमा कराना जो है वो इस काम पे डिपेंड कर रहा है। अगर एटीएम से पैसे निकल आएंगे, बैंक खुला होगा तो बिल जमा होगा। अगर एटीएम से पैसे नहीं निकले, बैंक खुला हुआ भी है, तब भी बिल जमा नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये वाला काम जो बिल सबमिशन का है, बिल सबमिशन का काम जो है वो बेस कर रहा है किस पर? ये बेस कर रहा है प्रीवियस टास्क पर। ये मैं जरा एक कॉल ले लूं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप।
अच्छा, आप लोग 2 मिनट वेट करें, अभी कॉल मेरी चल रही है, इस पे आप सोचें जो भी मैंने पॉइंट समझाए हैं। आप दोनों के प्रोफेशन की जाने आप लोग करते हैं बहुत तेज हो रहा है जी। आपका जो लाइफस्टाइल हमें वीडियोस में नजर आता है, बड़े लेविश किस्म के होते हैं।
आई एम सॉरी द कॉल बिकम्स लेंथी। जी आप कुछ सवाल कर रहे थे इसमें, मैंने इसमें बताया था जो अभी क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था कि हमने क्या हमने एक और इसमें काम था, 3 काम तो देखें सीक्वेंशियल थे, परचेज शुगर और मूव मिल्क शॉप और परचेज मिल्क और फिर एटीएम से पैसे निकालना, ये तो विदाउट एनी कंडीशन थे। लेकिन जो अगला काम था बिल जमा कराने वाला, वो इस तीसरे पर डिपेंड कर रहा था। अगर कैश निकला था, चाहे बैंक खुला हो या ना खुला हो तो तब भी नहीं कर सकता। खैर वो बैंक, पैसे निकल भी गए, बैंक भी, तो अब देखिए कंडीशंस आ रही हैं, 2 कंडीशंस आ रही हैं। पैसे निकल गए, बैंक बंद है, बिल नहीं जमा होगा। पैसे नहीं निकले, बैंक खुला है, बिल नहीं जमा होगा। अच्छा, एक ही वक्त में सिर्फ ये बिल जमा होगा कि कैश भी निकल आए, बैंक भी खुला हो, तो ये एंड की कंडीशन है। तो एंड और मैंने समझाया भी था आपको, ये हम लगा सकते हैं। तो ये अब आप बताएं, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है इसमें तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के सीक्वेंशियल लॉजिक में, सॉरी सिलेक्शन लॉजिक में। कैन यू हेयर मी? अच्छा मैं अभी अनम्यूट कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट ने अपने माइक्स वाइक्स लगा के और उसको शुरू कर दिया था, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले आपको अलाउ कर देता हूँ पार्टिसिपेंट्स को कि वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड रेज क्वेरीज। If you do not have any question, can I move to the next logic, repeated logic? जी सर, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, आप थर्ड लॉजिक समझा दीजिए। यस सर, श्योर। यस सर। ठीक है। अच्छा, थर्ड लॉजिक ये है कि मैं यहाँ आकर इस आखिर में मैं ये चाहता हूँ इस जगह पे कि मैं इन कामों को रिपीट करा लूँ। go to step 1. If user want, ये मैंने क्लोज कर दिया। ये देखें, ये मैंने कर दिया गो टू स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, ये रहा। ठीक है। अच्छा एक बात, बल्कि इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। गो टू स्टेप 1 इफ नॉट संडे। देखें अब क्या होगा। यूज़र को मैंने लिस्ट दे दी है अपने जो सर्वेंट है उसको, एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम। अब जब ये सारे काम हो गए एक दिन के, तो अगले दिन क्या होगा, गो टू स्टेप 1, अगले दिन वो स्टेप 1 पे चला जाएगा, फिर अगले दिन यही काम करेगा लाइन से, फिर अगले दिन वो यही काम करेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना गो टू स्टेप 1। लेकिन कब स्टेप 1 पे जाना है और कब नहीं जाना, इसके आगे मैंने एक और कंडीशन लगा दी। अगर संडे नहीं है तो स्टेप 1 पे जाना है, और अगर वो संडे है तो उसका छुट्टी है, फिर तो वो आएगा ही नहीं, और छुट्टी है तो काम खत्म। तो ये एक वीक का रूटीन बना दिया मैंने इसको। एक वीक का रूटीन खुद ऑटोमेटिक सिस्टम पे चल रहा है। पहला काम सुबह हुई, मंडे से शुरू हुआ। देखे मंडे आया, उसने आया, ये सारे काम किए, करने के बाद जब वो यहाँ आया, आज संडे नहीं था, तो कल दोबारा फिर आ जाएगा, फिर वो ये कार्यक्रम करेगा। ट्यूसडे पे ये सब काम हो गए, थर्सडे पे हो गए, फ्राइडे पे हो गए, सैटरडे पे हो गए। उसके बाद जैसे संडे आया, स्टॉप, छुट्टी है, फिर मंडे से रूटीन दोबारा शुरू हो जाएगी। तो ये गो टू समझ में आ रहा है। गो टू क्या कर रहा है, गो टू मुझे ये अलाउ कर रहा है कि मैं इन स्टेप्स को रिपीट करा रहा हूँ। ये सारे स्टेप रिपीट हो रहे हैं। कितने दिन रिपीट हो रहे हैं? 7 दिनों में से ये सारे स्टेप 6 दिन रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो तीसरी लॉजिक मैंने दिखाई है इसमें, इसको हम कहते हैं रिपीटेड लॉजिक या आइटरेटिव लॉजिक। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम बहुत सारी जगहों पे देखें, कुछ काम होते हैं जो हमें रिपीटेडली करने होते हैं, कुछ काम होते हैं जो वंस करने वाले होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कंडीशनल करने वाले होते हैं। तो डेली रूटीन के तो काम हमारे देखें ये तीनों चीज़ों के साथ हम मैच कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल इसमें आगे बढ़ा रहा हूँ, आपकी डेली रूटीन की एग्जांपल आगे शायद मैंने पहले भी बढ़ाई थी, अब फिर इसको एक दफ़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। तीनों कंडीशन देखें आपकी डेली रूटीन में आ जाएंगी। सर जैसे हमने अगर बिल का ऑप्शन हटाना होगा तो उसके लिए हटाएंगे तो उसको, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? वो तो फिर सीक्वेंशियल में रह जाएगा ना। अगर बिल का कंडीशन हटा दी हमने तो फिर तो सारे काम नहीं, मतलब कि जैसे जुम्मे को पूरे महीने के अंदर तो नहीं करना है, सिर्फ एक ही दिन करना है, तो क्या लिखेंगे? कुछ काम ऐसे लिख दिए थे जो रोजाना बिल नहीं जमा होता। सही कह रहे हैं आप, तो मैं काम की लिस्ट चेंज कर देता हूँ।
और सर एक और चीज थी, आपने बोला जैसे कि मंडे को वो इतवार को वो छुट्टी करेगा, तो उसको हम जो कमांड देंगे इतवार को की छुट्टी करनी है, वो हम देंगे कि मतलब यहाँ से स्टार्ट वीक होएगा, बिल्कुल हाँ, या ये फिर सब जो वो ये कंप्यूटराइज उठाएगा, या नहीं नहीं, मतलब खुद जो कुछ नॉर्मल डेट चल रही होती है? नहीं 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 नहीं, ये आप अपना नाम बताएंगे, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मदर सलान। अरसलान, अच्छा सवाल है अरसलान आपका बहुत। ये सारे काम अरसलान, ये बात याद रखें कि जो भी हमें देना है ना, कंपाइलर हमारी इंस्ट्रक्शन, हमारा मुलाजिम है, जो हम कहेंगे एग्जैक्ट वैसा करेगा, अपने पास से वो 1% भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ये बात याद रखें। और ये आपका सही। काम सही था कि हम रोजाना तो बैंक में बिल नहीं जमा कराते हैं, तो ये काम तो हो ही गलत रहा है। मैं अब आपको यहाँ आपकी रूटीन डेली बता रहा हूँ। जी जैसे सर। मैंने कहा था, सुबह आपने फजर पढ़ी और फजर पढ़ने के बाद आप यूनिवर्सिटी के लिए चले गए, फिर यूनिवर्सिटी से आप वापस आए, फिर आपने जो है लंच वंच किया, फिर थोड़ी देर हो सकता है आपने रेस्ट किया हो, उसके बाद फिर आपने क्रिकेट खेलने चले गए हो। लेकिन फिर अगर आपने यहाँ वही मैं लगा दी कंडीशन, अगर संडे है तो फिर कुछ और काम आएंगे आपके, ठीक है, ये सारे काम इंटरप्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो ये क्या है, और यहाँ से ये सब काम करने के बाद फिर मैं अगर ये रिपीट करा देता हूँ तो ये रिपीटेड हो जाएंगे। तो मंडे के सारे काम, फिर ट्यूसडे के सारे काम, फिर संडे को ब्रेक। तो ये भी एक 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 पैटर्न है जिसमें हम ये कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिपीटेड लॉजिक की रिकॉर्डिंग कर लूँ, फिर उसके बाद मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि वो कैसे इस पे वर्क करता है। मार्कशीट वाला प्रोग्राम हमने बनाया था, उसको मैं सिलेक्शन लॉजिक से और फिर उससे भी एडवांस वर्जन उसका दिखाऊंगा, जिससे हम रिपीटेड लॉजिक से उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले रिकॉर्डिंग का काम, जिसमें मैं रिपीटेड लॉजिक को मैं रिकॉर्डिंग में ले। Third logic, which is very important, is known as iterative logic or a repeated logic. Repeated logic work if we want to repeat any set of instruction. Suppose these are the 4 lines. After these 4 lines, I have to mention a condition here. If x is greater than 2, then go to step 1. And so line number 1 will be executed, then line number 2 will be executed, then line number 3 will be executed, line number 4. These are the sequential lines. Here I have selection logic as well as repeated logic. If value of a, at this stage, the value of x is to be checked. If the value of x, if the value of x is, if the value of x is greater than 2, then program go to the, if x is greater than 2, then go to step number 1. Otherwise, break the lines. So this is the program. Line number 1, 2, 3, 4. These 4 lines will be executed. This is step 1, this is step 2, this is step 3, this is step 4. Line number 1, 2, 3, 4 will be executed in a sequential manner. When it comes to the line number 5, it has a condition. This is condition. Condition is what? If the value of x is greater than 2, then do it. Otherwise what? Otherwise go to the next line. Next line, there is no next line. There's a closing bracket, means program will vanish or finish. So if the value of x is greater than 2, it will go to the step number 1. So we have to break this repeated logic by this condition. If condition is true, move to the here. Whenever the condition is true, if x is 2 or greater, if x is 2, then it will stop. If x is 3, it will go. If x is 1, it will go to the step number 1. So this logic is known as repeated logic. जी पूछें, अब सवाल पूछना है तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया इसको, अब आप मुझसे इस पे सवाल कर सकते हैं रिपीटेड लॉजिक पे। देखिए यहाँ मैं x की वैल्यू कोई भी चेंज कर लूँ, बीच में मैं लगा दूँ x इज इक्वल टू x प्लस 1 और यहाँ मैंने लगा दिया था, जब जैसे अंदर आएगा इसके इस स्टेप पे पहुंचेगा ना, तो x की वैल्यू एक इंक्रीज कर लेगा। अगर मैंने x 0 से शुरू किया हुआ था, तो जब यहाँ आएगा तो अभी x 0 है, 0 है, 0 है, ये सब काम होंगे। यहाँ जैसे आएगा x 1 हो जाएगा,
क्योंकि 0 में 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ आएगा, चेक करेगा 1 2 से बड़ा है, नहीं है, नहीं है तो कहाँ जाएगा, स्टेप 1 पे जाएगा। फिर स्टेप 1 पे जाएगा तो ये काम करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और फिर x में क्या करेगा, एक और इंक्रीज कर लेगा। अभी x1 था, अब x2 हो जाएगा, तो अब x2 हो जाएगा तो यहाँ आएगा, चेक करेगा क्या x2 है, नहीं, क्या x2 से बड़ा है, नहीं, तो 2 से बड़ा होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो 2 से बड़ा नहीं होगा, कंडीशन फेल होगी। मेरे ख्याल से उल्टा हो गया, ये 0 बड़ा है 2 से, नहीं तो स्टॉप कर देगा, तो रिवर्स कर दिया मैंने इसको, ग्रेटर देन के बजाय लेस देन कर लिया। तो अगर छोटा है तो जाए, वरना ना जाए। तो 0 था, फिर 1 हो गया, 1 छोटा है तो ये है स्टेप 1 पे, फिर 1 के बाद 2 हो गया, फिर ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब ये 3 के ऊपर क्या होगा, लेस देन 2 है, नहीं है, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, स्टॉप कर देगा। जी अब पूछ लें क्वेश्चन आप। तो हमेशा जब भी देखें रिपीटेड लॉजिक लगाएंगे ना, उसको किसी कंडीशन के मातहत जरूर रखेंगे, वरना रिपीटेड लॉजिक जो है अगर मैंने इनफाइनाइट लगा दी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा उससे। फिर जी और कोई क्वेश्चन है? अच्छा सर, पूछ रहे था कि अगर रिपीटेड लॉजिक में मतलब हमारी जो कंडीशन लगी हुई है जी इसमें ये नहीं फुलफिल हो पा रही, बार बार वो स्टेप नंबर 1 पे जा रहा है, होते जा रहा है, ऐसे रिपीट काम होते जा रहा है, तो ये कब तक होगा? ये तो हम इसको देखें, आपने अक्सर प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर में ये सुना होगा कि कंप्यूटर हैंग हो गया, सुना ही लफ्ज़ कंप्यूटर हैंग हो गया। जी जी। कंप्यूटर हैंग यही होता है, वो पीछे बिजी है, वो पीछे आपने कोई ऐसी कमांड दे दी उसको, वो पीछे से उसका प्रोसेसर जो है ना वही काम किए चला जा रहा है, आपको यहाँ आन के रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। वो जब उसके काम खत्म होते हैं, जब आपको रिस्पॉन्स देता है ना आगे, तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। अगर ये ऐसी मैंने कोई कंडीशन यहाँ लगा दी जिससे हमेशा ये यहाँ आएगा गो टू पे, और ये हमेशा ऊपर चला आएगा, तो ये तो नीचे कभी भी नहीं आएगा, ख़त्म कभी भी नहीं होगा। तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोग्रामर इसको किसी लेवल पे ले जाके लाजमन ख़त्म कराए, वरना ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। और इनफाइनाइट लूप जो है ये एक लॉजिकल एरर है, एरर तो है ये, लेकिन ये सिंटैक्स एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है। और एरर मैंने लेक्चर 1 में समझाए थे, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर। तो ये इस वक्त एक लॉजिकल एरर बन गया, यानी मैंने प्रोग्रामिंग में एक ऐसा एरर किया जिससे कभी भी ख़त्म की तरफ जा ही नहीं रहा, तो वो रिपीटेड लॉजिक उसके में रन हो गई। ठीक है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको किसी तरीके से कंडीशन को ख़त्म की तरफ भी लेके जाएं। अगर आप कभी भी ख़त्म की तरफ ना गए तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? तो अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम एक्सटेंड कर दूं जिसमें मैं दिखाऊं कि भाई हमारे पास ये सीक्वेंशियल और ये लॉजिक्स के कैसे हम काम करते हैं, उसको कैसे हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए हमने मार्कशीट का एक प्रोग्राम बनाया था, मार्कशीट में अभी हमने लेकिन ग्रेड छोड़ दिए थे। हमने सिर्फ ये कहा था 3 सब्जेक्ट से मार्क्स एंटर करें, ग्रेड निकाल, टोटल निकालें, परसेंटेज निकालें, प्रिंट कर दें। इसलिए कि ग्रेड निकालने में, सॉरी टोटल निकालने में, परसेंटेज निकालने में कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए वो सिंपल था। मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूँ। उसमें हमने मेन बनाया था, मेन वॉइड, फिर हम पहला काम किया था वेरिएबल डिक्लेरेशन। हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए थे, फ्लोट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल, परसेंटेज। अब मैं एक और भी वेरिएबल बना रहा हूँ, ग्रेड, कैरेक्टर, ग्रेड। कैरेक्टर टाइप का बनेगा ना, इंटीजर नहीं बनेगा। ग्रेड ABCD होंगे तो ABCD हम कैरेक्टर में रखते हैं, फ्लोट में नहीं रखते। ठीक है, अब पहला काम क्या होगा, इनपुटिंग। किस किस की इनपुटिंग? ये पुराना प्रोग्राम है, यहाँ तक तो देखें। इन सब्जेक्ट्स में इनपुट होगा,
और जब इन सब्जेक्ट्स में इनपुट हो जाएगा तो फिर मैं टोटल और परसेंटेज निकाल लूंगा, ठीक है। और टोटल परसेंटेज भी सीक्वेंशियल में आएगा। लेकिन जब मुझे ग्रेड निकालना होगा ना, अब कंडीशंस लगानी पड़ेंगी मुझे। कंडीशन में अप्रोप्रिएट लगाऊंगा अभी, तो मैं अभी सिर्फ कंडीशनल लॉजिक बढ़ा रहा हूँ, अभी रिपीटेड लॉजिक नहीं बढ़ा रहा इसमें। तो अब से अभी प्रोग्राम में एक हिस्सा बढ़ा रहा हूँ। तो पहला काम तो हम ये करेंगे सी इन। अच्छा, सी इन को मैं सिंपल एक लाइन में लिख के दे रहा हूँ। किस किस सब्जेक्ट में इनपुट होगा? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में। ये 3-4 लाइनें लिखनी थी, लेकिन मैंने एक में इसलिए सिंपलिसिटी के लिए लिख दिया है। आपने पिछले प्रोग्राम के अंदर ये देख चुके थे कि हम कैसे इसको अलग अलग लाइनों में करते हैं। इसके बाद क्या करना था? अब हमें टोटल निकालना था। टोटल कैसे निकलेगा? टोटल निकलेगा PH + CH + MT। ये टोटल निकल आएगा। टोटल निकलने के बाद क्या होगा? परसेंटेज निकलेगी। परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। देखें, अब ये सारे काम जितने अभी किए हैं ना मैंने, ये सब सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल है। क्यों सीक्वेंशियल है? वेरिएबल डिक्लेयर भी करने हैं, वेरिएबल में इनपुट भी लेना है, फिर टोटल भी सबका निकालना है, परसेंटेज भी सबका निकालना है। अब ग्रेड कंडीशनल है। क्यों? जिनकी परसेंटेज 80 से बड़ी है उन्हें A ग्रेड देना है, जिनकी परसेंटेज 80 से छोटी है, 70 से बड़ी है, उन्हें B ग्रेड देना है। इस तरह से मुझे कोई सिस्टम बनाना है जिसे हम ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। किसी भी इदारे का अपना ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो देखें आप कैसे लिखेंगे। इफ परसेंटेज is greater than or equal to 80, grade is equal A, semicolon. Else if percentage is greater than or equal to 70, अच्छा यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा, then grade is equal B, else if percentage is greater than equal to 60, then grade is equal C। इसके बाद मैं चाहता हूँ फेल करार दे दूं, बस इससे आगे मैं नहीं चाहता कोई और बढ़ाऊं। तो अब मैंने देखिए क्या किया। फिर अब इफ नहीं लगाना, अब आपको सिर्फ लिख देना है एल्स। ये लाइन नीचे लिखनी थी लेकिन यहाँ लिख रहा हूँ, एल्स ग्रेड इज इक्वल एफ। यहाँ तक तो ये पूरा हो गया इफ आपका। अब इसके बाद फिर सीक्वेंशियल लॉजिक शुरू हो गई। सीक्वेंशियल लॉजिक में क्या करना है? प्रिंट कराना है। प्रिंट क्या क्या करना है हमें? सी आउट। अच्छा, ये मैंने सी इन के सिंबल गलत बना दिए, आपने किसी ने इतराज़ भी नहीं किया। सी आउट क्या चीज़ प्रिंट करनी है मुझे? टोटल प्रिंट करना है मार्कशीट प्रिंट करने के लिए। और फिर एक और चीज़ प्रिंट करनी है मुझे, परसेंटेज। फिर एक और चीज़ प्रिंट करनी है मुझे, ग्रेड। और फिर ये ख़त्म। यहाँ से मैं कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ और ये हटा रहा हूँ, क्योंकि सी इन में ये ब्रैकेट्स, ये जो एरो हैं ये यूँ आते हैं। अब देखिए सीक्वेंशियल लॉजिक शुरू हुई। ये चलेगा, ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, यहाँ तक तो सीक्वेंस में चलेगा खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली जब मैं रन कर दूंगा। तो यहाँ आके जब परसेंटेज निकाल ली थी उसने, अगर परसेंटेज 80 से बड़ी हुई तो ग्रेड में A रख देगा, वरना अगर परसेंटेज 70 से बड़ी हुई, 80 से छोटी हुई तो वो D रख देगा, वरना 60 से बड़ी हुई तो C रख देगा। और C भी नहीं मिल रहा अगर किसी को तो मैंने F कर दिया, उसको F कर देगा और फिर प्रिंट कर देगा ग्रेड टोटल परसेंटेज को। अब पूछे सवाल पूछने, तो इस प्रोग्राम में कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें।
सर अगर परसेंटेज को अगर हम लेस देन मेंशन ना करें तो काम कर जाएगा? जैसे अगर 70 से अबव है तो वो फिर 80s वाले को भी तो बी काउंट करेगा। नहीं, लेकिन एल्स है ना, देखिए एल्स का मतलब क्या है, यहाँ इस कंडीशन को देखने आएगा ही उस वक्त जब 80 से छोटा होगा। एल्स का Okay. मतलब, ठीक है, वरना ये बड़ा गलत हो जाएगा अगर मैं ये एल्स हटा के इफ लगा दूंगा ना। सही ये है। सब, तो यहाँ एल्स इफ लगा रहा हूँ मैं, लेकिन खाली इफ लगा दिया अगर कि अगर परसेंटेज इतनी है तो वो ये करे, वरना ये करेगा, फिर वरना ये करे, तो सब गलत हो जाएगा ये। तो ये इनका अच्छा सवाल है वसीम अब्बास का, और कि ये अगर मैंने परसेंटेज में ये साइनें गलत कर दी और ना लगाया एल्स तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आप म्यूट कर लें वसीम अब्बास। और कोई सवाल है किसी का? एनी क्वेश्चन प्लीज? एमन? जी सर। जी कोई क्वेश्चन है? नो सर, समझ रही थी। अच्छा, दूसरे जो बॉयज में सी आ रहे हैं वो कौन है भाई, जरा आप भी बता दें। यस सर। कैन। जी जैन। नहीं सर समझ आ रहा है। बस सर एक बात थोड़ी सी कंफ्यूज करी थी कि जहाँ हमने एल्स लिखा है उसके बाद सेमी कॉलन क्यों नहीं लगाया? लाइक इफ पे हमने ए ग्रेड पे सेमी कॉलन लगाया था। देखिए ग्रेड पे सेमी कॉलन उस वक्त लगता है जब ये लाइन पूरी हो जाती है। ये इफ यहाँ से शुरू हुआ है, एक लाइन है ये पूरी, और ये इफ यहाँ तक चलता हुआ आ रहा है। तो ये इफ को अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो इफ मैं यहाँ जरा कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल इनका, जैन का। ये इफ मेरा यहाँ से शुरू हुआ है, कोई ब्रैकेट लगाना नहीं है, लेकिन सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से इफ शुरू हुआ है और इस जगह पे ये इफ खत्म हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसको एक स्टेटमेंट समझ रहा है, एक लाइन समझ रहा है। लेकिन मैंने लिखी हुई अलग अलग लाइनें हैं, लेकिन वो उसके लिए ये एक ही लाइन है पूरी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ सेमीकोलन, अगर यहाँ सेमीकोलन लगा दिया तो इसका मतलब है ये वाला इफ तो टर्मिनेट कर दिया, एरर आ जाएगा, ये भी एरर आ जाएगा। तो यहाँ सेमीकोलन कहीं नहीं लगाने, सिर्फ सेमीकोलन यहाँ लगाने। ग्रेड इज इक्वल टू ए, इस पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है, क्योंकि ये एक मुकम्मल स्टेटमेंट है। ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। ग्रेड ए उसको देंगे जिसकी परसेंटेज 80 से बड़ी होगी, वरना नहीं देंगे ग्रेड ए। वरना चेक करेंगे जिसकी परसेंटेज अगर 80 से छोटी है तो यहाँ आ जाएगा वरना में, और अगर वो 70 से बड़ी है तो बी ग्रेड देंगे। अगर वो 70 से बड़ी भी नहीं है तो इसका मतलब है फिर वो 60 से बड़ी है तो सी ग्रेड दे देंगे। अगर वो 60 से बड़ी भी नहीं है तो बाकी जो भी बचा आप सबको एफ ग्रेड करार दे देंगे। तो ये मैंने एक सिंपल बनाने के लिए कर दिया, वरना तो आप लोगों को सी और डी और ई ग्रेड भी दे देते हैं, लेकिन ये सिंपल बनाने के लिए ऐसा कर दिया हमने इसको। ये समझ में आ गया? यस सर। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहिएगा ताकि रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू प्रीपेयर अ वन कंप्लीट प्रोग्राम रिगार्डिंग द mark sheets, and here we have to define few variables for related to the mark sheet. Marks in physics, a variable pH is created, ch is created, mt is created, and two more variable are required, which is total and percentage. So there is no rectangle over there. If you are confusing with these two rectangles, there is no rectangle. This is one complete line. I want to just explain these three variables are different with these two variables. How these three are different with these two variables? These three variables needs inputting. These two variables need calculation. So that is why I made a rectangle over there and there. But C compiler or C++ compiler does not discriminate them, because all of these five variables are a float variable. Then I need a grade variable. That grade contains A, B, C, D. So that is why I created a character variable instead of integer variable. Then I have inputted the data C in physics marks, chemistry marks. I put that in one line, but this is not necessary to put that one line. So you have a three separate lines for inputting in physics, for inputting in chemistry, for inputting in maths. So in detail, I gave this inputting in the last program. I'm not going to mention it here again. Then total is calculated. Physics plus chemistry plus math is equal to the total. Percentage is calculated. Total marks. It means percentage is depend on this total. Total compute first, percentage compute next. If someone put the percentage formula first, then total formula later on, that will be a logical error, because percentage can be calculated by total.
total cannot be calculated by percentage. So this is first statement, then later on this should be. If you change the order of these two commands, this will be error. If we change the order of these two commands, this will also be an error. Because if I put total first and inputting later on, so this will be an error because total cannot be calculated before inputting. So all of the steps are at proper stage. You cannot change the order of these lines. If you change the order of these lines, then that will make a logical error or a syntax error in your program. Then from here, a conditional logic is started. If percentage is greater than this, grade is equal to A, the percentage. If command will be later on the percentage command because percentage is computed first. Then we can check whether percentage is greater than 80 or not. Otherwise, if I put this line first and this is second, so there will be an error. If percentage is greater than 80, then the grade A will be assigned to the variable. If otherwise there is no semicolon, you should have to remove this semicolon because if I put a semicolon here, this will become error. So if else percentage is greater than 70, then grade B is assigned. If percentage is greater than 60, then grade C is assigned. So this command starts from here, this if command, this selection logic. This is the selection logic which I am introducing here. This selection logic is started from here and it goes up to this point. Selection logic is there. Then we have, after calculating the grade, we have output the variables. So what are the outputs? Total is calculated. And then not calculated, total is printed, then percentage is printed, then grade is printed. After these outputs, the program finish. So here we have sequential logic, line 1, 2, 3, 4, 5. So 5 lines in sequential logic. The 6th line is a selection logic. Here the compiler will select whether this is correct or not. If this is correct, then this work has to be done. If this is not correct, then check and another work. If this work is correct, then do this, grade B. If this is not correct, then do this. Otherwise, do this, and then output will be printed. So the last line will comes into the sequential order again and stop the program. जी पूछिए अब आप इसको, मैंने एक दफा फिर रिपीट कर दिया है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए. अब मैं इसमें एक एक्सटेंड कर रहा हूँ एक पॉइंट को जिसमें मैं इसकी आइटरेटिव लॉजिक इंक्लूड कर दूंगा. सर एक क्वेश्चन है. जी पूछिए. सर देखिए ये तो जैसे कि एक मतलब सिंपल मार्कशीट है. अब जैसे कि अगर हमें नेम को भी ऐड करना है कि मार्कशीट पे हर स्टूडेंट के नेम से हो, तो नेम वाला तो हम मेरे ख्याल है करेक्टर वाली स्टेटमेंट में उसको इंक्लूड करेंगे ना. बिल्कुल, लेकिन वो सीक्वेंशियल लॉजिक में रहेगा. मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया. यहाँ होना तो ये चाहिए था, रोल नंबर भी आना चाहिए था, नेम भी आना चाहिए था, क्योंकि मार्कशीट पे तो ये सारी चीजें प्रिंट होती हैं. लेकिन उनको वो तो सिंपल है, उसमें कोई सिलेक्शन लॉजिक यूज नहीं हो रही, उसमें कोई आइटरेटिव लॉजिक यूज नहीं हो रही. बस आप 2-3 वेरिएबल बढ़ा लें, एक यहाँ कैरेक्टर नेम से बढ़ा लें, एक यहाँ आप एड्रेस का बढ़ा लें, एक यहाँ आप रोल नंबर का बढ़ा लें. वो सिंपल प्लेन है, बस प्लेन प्रिंटिंग होगी, प्लेन इनपुटिंग होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम इसमें फील्ड्स बढ़ा, इन्हें फील्ड्स कहते हैं. अभी मैंने सिर्फ वो फील्ड्स रखी हैं जो हमें इस मार्कशीट की जो कैलकुलेशन और ग्रेड और ये बनाने में हमें जरूरत थी इसकी. अब मैं आखिरी पार्ट की तरफ आ रहा हूँ. इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ रिपीटेड लॉजिक. ठीक है, तो रिपीटेड लॉजिक को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटेड लॉजिक इतनी सिंपली मैं इंप्लीमेंट नहीं करता जितनी है. उसके लिए मुझे 2 अलग स्टेटमेंट्स हैं जो लिखने पड़ते हैं, और वो स्टेटमेंट्स कहलाते हैं फॉर, वाइल, डू वाइल. तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. पहले रिकॉर्डिंग करूंगा, बाद में समझाऊंगा उसको फिर. ठीक है, ताकि वो रिकॉर्डिंग में बिल्कुल इनिशियल स्टेज से आ जाएगी. तो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक्स को क्लोज रखिएगा, क्योंकि माइक किसी का भी ऑन होता है तो वो रिकॉर्डिंग में वो अननेसेसरी वॉइस और साउंड्स उसमें चली जाती हैं. अच्छा, ये अब मैं करने जा रहा हूँ ये कि now I want to introduce a repeated logic here. So in C++, we can introduce the repeated logic by 3 different commands.
One of the command is called for, and the next one is called while, and the third one is called do while, do while. And these are the iterative logic or the loops. In simple, I can call it as loops. So these are the looping statements, and these are the selection statements. The two statements are there for selection logic. One is if, other one is switch. And one more selection logic I used in the previous lecture, and that is conditional statement. Conditional statement. So I do not have any of the specific command for sequential logic. So sequential logic is a default logic. So I am just using our default, means no special command is needed for our sequential logic. When I execute the program, automatically it will be run line by line. If I want to place selection logic, I can use either if, or I can use switch, or I can use conditional operator. Question mark, I explained in the last lecture, question mark. Condition and a question mark, then true statement, colon, false statement, and a semicolon. This is called conditional statement. So I can use a conditional statement here. Grade B में से बना सकता हूँ. Now the third logic is the loops. Loops can be created either by for, by while, by do while. It is not completely do, it is do while. So now these three, I'm going to explain these three, how these while, do while will be included in the program. Now you can see this slide. In this slide, while the repetition structure or the looping structure. Repetition structure, program specified an action to be repeated while some condition remains true. If the condition is true, then set will be executed. Otherwise, skip that. So do not repeat. The while loop, repeat until the condition becomes false. So just an example, you can see here. I have declared in this example a variable product is equal to true. So what this do? This is an assignment statement. This will create a variable named product and store true into this variable. So this is called assignment statement. After completing this assignment, a condition is there, while a loop is there. Loop is what? Product is less than is equal to 1000. So how you have to write down the while is a very simple way you can write down the while. While can be written as while in a line. In bracket, you have to place a condition. And after condition, you have to make a block. And in block, you may have one or more statements. If the condition is true, then it comes in. If the condition is false, it goes out. If the condition is false, it goes out. If the condition is true, it executes inside. So this is the loop. If product is less than 1000, yes, it is true. Product is less than 2. Is the condition true or false? It is true. If it is true, comes in and do it. I'm just writing a bracket here just for a simplicity. If product is less than 1000, do it. What this is doing? Product equal to into product. Product value of product will be doubled. Previous value of product was 2. 2 multiplied by 2 becomes 4. Now the new value of the product is 4. Is the condition true or false? It's come again. And check. Product is less than 1000? Yes.
it's automatically moved to the first line of condition. Yes, 4 is less than 1000. Again, come here and do what? 2 multiply by the product. Product is 4. 4 multiplied by 2 becomes 8. So now the new value of product becomes 8 and comes after completing this statement here. Check it again. 8 is less than 1000. Yes. So do it again. What is doing? 2 multiply by the product. Still the current value of product is 8. 8 multiplied by 2 becomes 16. 16 will be assigned to the variable product. It will be 16. And so on. This loops continues unless I have a number which is more than 1000. If the number is more than 1000, it goes outside of the loop and the loop terminates. So this is called repeated logic. You can ask the question regarding this function. जी अब आप पूछें, मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली इसकी. जी पूछें. सर एक दफा उर्दू में थोड़ा सा समझा दें. अच्छा ठीक है. देखिए तीन काम हो रहे हैं यहाँ पे. सही है. क्या 3 काम हो रहे हैं? मैं तीनों कामों को समझा देता हूँ आपको. ये सब हटा दिया मैंने. हालांकि ये वाला नहीं हटाना चाहिए था मुझे, लेकिन चलें, हट गया तो हट गया. ये देखिएगा. अच्छा नाउ इन एक लाइन नंबर ये है. अच्छा मैं आपको सिखा ये रहा था कि इसमें हमारे पास कितनी लाइनें हैं. इसमें बेसिकली तो एक लाइन तो ये है, लाइन नंबर 1. एक ये है लाइन नंबर 2. लाइन नंबर 2 के अंदर एक काम हो रहा है, वो ये है. और ये एक लाइन नंबर 3 है. ये लाइन नंबर 3. इसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं है. तो प्रोग्राम का अगला हिस्सा ये है. अगर ये मैं कहूँ, जहाँ नज़र नहीं आ रही, लाइन नंबर 4 भी है, 5 भी है, और यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है. और इससे ऊपर भी कोई लाइन नंबर 0 भी हो सकती है. ये लाइन नंबर 0 है. तो जब मैं इसको रन करूँगा तो पहले ये लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर यहाँ आएगा, फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी. लाइन नंबर 2 में 2 काम हो रहे हैं. क्या 2 काम हो रहे हैं? कोई बता सकता है लाइन नंबर 2 में क्या 2 काम हो रहे हैं? लाइन नंबर 2 एक है, लिखी हुई एक है, लेकिन इनमें 2 काम हो रहे हैं. कोई बताएगा कौन से 2 काम है? ग्रेडेड टू दोनों चेक करेगा ना. फिर से बताइए अरसलान. मतलब वो पहले चेक करेगा ना, क्या बोलते हैं 1000 जो है वो उससे. अभी मैं लाइन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, तुम लाइन नंबर 1000 पे पहुंच गए. मैं तो अभी सिर्फ इस लाइन में क्या हो रहा है लाइन नंबर 2 में. ये लाइन नंबर 2 नहीं है, 1 है, सॉरी. सीक्वेंस के लिहाज से जो, हाँ ये इसमें क्या काम है? उसके अंदर तो इक्वल टू से चेक कर रहा है. ये इक्वल टू चेक कर रहा है क्या प्रोडक्ट की वैल्यू 2 है या नहीं है, ये चेक कर रहा है. नहीं सर, ये तो हमने इनिशिएट खुद किया. सर असाइन हो रही है वैल्यू प्रोडक्ट को. ये किसने जवाब दिया है? मुझे नाम जरूर बता दिया करें. उसामा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. उसामा, इसमें 2 काम हो रहे हैं. एक तो तुमने बता दिया, एक और बता सकते हो? असाइन तो हो गया, ये प्रोडक्ट को 2 असाइन हो गया. एक और काम भी इसमें हो रहा है. देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिक्लेयर इंटीजर डिक्लेयर हो रहा है. हाँ, और असाइन. दोनों को मैं अलग अलग भी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं ये कर देता इंट प्रोडक्ट, एक लाइन में अलग कर देता, फिर मैं कर देता प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2, तो ये असाइन हो जाता. तो एक में डिक्लेयर होता है, एक में असाइन होता है. ये दोनों एक साथ कर दिए गए हैं, डिक्लेयर एंड असाइन. ठीक है, ये एक काम हो गया. इसके बाद ये वाइल शुरू हो गया. वाइल को यहाँ से समझे, यहाँ तक ये एक है. ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये खुद ब खुद कंपाइलर ये समझेगा ये वाइल का हिस्सा है, वाइल से बाहर नहीं है. ये वाइल से बाहर हैं दोनों लाइनें. ये लाइन प्रोडक्ट वाली जो है ना, ये वाइल के अंडर में है. इसको थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ है, लेकिन आगे लिखने से मसला नहीं है, मैं बराबर में भी लिख सकता हूँ. लेकिन खुद ब खुद ये अज्यूम करेगा कंपाइलर कि ये वाइल है, ये ब्रैकेट. वाइल को लिखने का तरीका भी मैंने अभी समझाया था आपको. वाइल को लिखने का तरीका, ये वाइल लिखते हैं, ब्रैकेट बनाना ज़रूरी होता है, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखनी ज़रूरी होती है, कंडीशन के बाद यहाँ
एक ब्लॉक बनाना होता है और उस ब्लॉक में एक स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती, जैसे एक में एक लाइन। तो ये ब्लॉक का हिस्सा है, मैं चाहूँ तो ब्रैकेट्स बना दूं, ना चाहूँ ना बनाऊं। एक लाइन के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर एक से ज्यादा लाइन रखना चाहता हूँ तो ब्रैकेट की जरूरत होती है इसके अंदर। ये दोनों लाइन लूप से बाहर हैं। तो अब ये इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए ये 2 0 हटा के समझाता हूँ, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगा ना। लूप 1000 तक चलाना तो बहुत मुश्किल है। ये 2 हटा दिए मैंने, अब मैं इसको चला रहा हूँ। जब पहली लाइन होगी तो क्या होगा, डिक्लेयर और साइन हो जाएगा। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है जिसका नाम है प्रोडक्ट, और उसमें टू रख दिया इसने। अब यहाँ आया वाइल पे, वाइल में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट छोटा है 10 से या नहीं है, हाँ है तो इस काम को करेगा, इस काम को, वरना इस काम को करेगा। ये समझ लें आप। तो हाँ है, ये तो छोटा है, 2 तो छोटा है 10 से, तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा उसे वापस प्रोडक्ट में रख देगा। तो 2 है अभी वैल्यू प्रोडक्ट की, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 हो जाएगा, 4 को फिर प्रोडक्ट में रख देगा, तो प्रोडक्ट में से 2 खत्म हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 आने के बाद खुद ब खुद यहाँ से यहाँ आएगा। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, ये खुद कैसे आ गया। वाइल के अंदर जो वाइल है रिपीटेड स्ट्रक्चर, ये खुद ब खुद रिपीट करता है अपने आप को। अब देखिएगा 4 छोटा है 10 से, हाँ है, फिर यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कीमत अभी 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 8 हो जाएगा, 8 को प्रोडक्ट में रख देगा। तो अब ये खत्म हुआ, 8 हो गया। 8 के बाद फिर दोबारा घूम के यहाँ जाएगा, 8 छोटा है 10 से, हाँ है, फिर यहाँ आ जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में 16 आ जाएगा। 16 के बाद फिर घूम के यहाँ जाएगा, अब चेक करेगा क्या प्रोडक्ट में 10 से छोटा है, नहीं, अब तो 10 से बड़ा है, 16 तो 10 से बड़ा है। तो ये अब घूम के वापस नहीं आएगा, ये यहाँ चला जाएगा इधर, ये काम करेगा, ये काम करेगा, फिर ब्रैकेट क्लोज होने का मतलब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जी आप पूछिए सवालात। सर ये 8 या 16 पर आके रुकेगा? 16 पे ये यूं रुक जाएगा, क्योंकि 16 पे कंडीशन फेल हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर आता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप से बाहर चला जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। सर ये वाइल लूप कुछ प्रिंट नहीं कर रहा? प्रिंट तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये सिर्फ कैलकुलेशन मैंने अंदर लिखी है। मैं बाहर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो यहाँ प्रिंट करा दूँ मैं। इधर यहाँ लिख दूँ मैं सी आउट प्रोडक्ट, तो ये 8 प्रिंट करेगा या 16 प्रिंट करेगा? 16 प्रिंट करेगा। 16 प्रिंट करेगा, 16 पे कंडीशन ट्रू हो रही है। 16 प्रिंट करेगा क्योंकि ये 16 होने के बाद कंडीशन फेल हुई। तो इस लाइन पे कब आया, इस लाइन पे उस वक्त आया जब वो 16 कर चुका था उस वैल्यू को। तो जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट कर देगा। तो 16 बाहर प्रिंट कराया है। अगर मैं इसको अंदर लगा दूंगा ना 6 प्रिंट करने को, तो देखें फिर बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। मैंने यहाँ भी लगा दिया, सी आउट को अंदर कर दिया मैंने। ये मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। और चेंजेस मैं ये कर रहा हूँ कि मैं 2 लाइनें वाइल के अंदर रखना चाहता हूँ। ये 2 लाइनें मैंने वाइल के अंदर कर दी और ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है यहाँ पे। अब पता है क्या आउटपुट आएगा? अब इसका आउटपुट आएगा I'm sorry। अब इसका आउटपुट देखें, यहाँ आएगा। पहले तो 2 था, 2 छोटा नहीं था, अंदर आ गया। अंदर आते ही क्या किया, 4 कर दिया। 4 करने के बाद क्या करेगा, ये करेगा, प्रोडक्ट को प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट प्रोडक्ट होगा तो 4 प्रिंट होगा। पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी स्क्रीन पर वो 4 होगी। फिर यहाँ से ये लाइन, यहाँ से लूप खत्म हो रहा है, फिर यहाँ आ जाएगा। 4 छोटा है 10 से, हाँ है, फिर यहाँ आएगा 4 2 8 हो जाएगा। 8 के बाद ये काम करेगा क्योंकि ये मैंने दोनों लूप के अंदर कर दिए ना। अब ये 8 भी प्रिंट कर देगा और 8 प्रिंट करने के बाद फिर ये यहाँ जाएगा। 8 छोटा है 10 से, हाँ है, तो फिर यहाँ आएगा। 8 2 16 करेगा। 16 करने के बाद फिर यहाँ आएगा, यहाँ से वो 16 भी प्रिंट कर देगा। 16 के बाद वो कंडीशन चेक करने जाएगा तो कंडीशन फेल हो गई है, तो बाहर चला जाएगा। बाहर कहाँ है, ये लूप से बाहर ये है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोग्राम के अख्ताम को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो स्क्रीन पे 3 नंबर्स आएंगे। अगर मैं ये ब्रैकेट मिटा रहा था तो स्क्रीन पे सिर्फ 16 आ रहा था। अगर ये मैंने अंदर कर दिया लूप के
तो आप देखें क्या चेंज आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है देखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इतनी छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, अगर आपने आज समझ ली तो आप ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देंगे। और अगर आज आपने इन चीज़ों को मिस कर दिया तो नो वन कैन एक्सप्लेन यू लेटर ऑन इन दिस डिपार्टमेंट। आप कोई कोर्सेज पढ़ लें, एडवांस कितने ही पढ़ लें, लेकिन ये जो बारीकियां हैं ना जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये कोई नहीं समझाएगा आपको इसके बाद, क्योंकि यही बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल से जब आप आगे चले आएंगे तो कोई बेसिक लेवल की चीज़ें आपको क्यों बताएगा। जी पूछिए। क्लियर है सर। क्लियर है, चाहिए। अच्छा, महर जवाद, महर जवाद अनम्यूट कर लें अपने आप को। मुझे बड़ा बुरा महसूस होता है जब मैं एक आदमी से मुखातिब हूँ, और आपको भी मुखातिब, अगर आप मुझे कुछ कहते रहें, सर ये कर दें, ये कर दें, मैं सुनूँ ही ना आपकी बात, तो आपको कितना बुरा महसूस होगा। अब महर जवाद जो हैं वो ऑन करके जूम मीटिंग और कुछ और कामों में मसरूफ़ हैं, खाना पका रही हैं शायद। हाँ भाई महर जवाद, क्या पका रही हैं आज, यही बता दें, या सो रही हैं? अच्छा, नेहा ताज। यस सर। जी नेहा, आप बता सकते हैं लूप में और कंडीशनल लॉजिक में क्या फ़र्क है? सर फिर से रिपीट करें, आवाज़ थोड़ी वो आ रही है। लूप में और कंडीशनल लॉजिक में क्या फ़र्क है? सर कंडीशनल लूप में होता है कि हम अपनी कंडीशन को पहले देखते हैं कि हमारी कंडीशन। आप अभी मिक्स कर रही हैं, मैं अलग अलग पूछ रहा हूँ। एक स्टेटमेंट है उसको मैं कह रहा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट है, एक को मैं कह रहा हूँ लूप है। इन दो में क्या फ़र्क है? सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट कट के आ रही है, शायद मेरा नेट इशू है, आप फिर से रिपीट कर देंगे? अच्छा चलें, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, आमना असगर से। जी आमना। अरसलान से पूछ लेते हैं, चलिए। जी सर। बताएं। अरसलान दोनों में डिफरेंस बताऊं या दोनों का डिफरेंस बताएं। जी उसामा, आप बता दें। सर फॉर लूप किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी कोड को वापस से बार बार रिपीट करने को कहते हैं। और क्या कहते हैं, वो कंडीशन, कोई भी कंडीशन जो उसके ऊपर लगी हुई हो, जैसे प्रोडक्ट इज लेस देन 10। सही है, सही है। देखें ये मैंने दोनों इसमें, ये अगर आप इसको देखेंगे ना वाइल को, तो वाइल में दो चीज़ें हैं साथ मिली हुई। तो वाइल लूप है खुद, वाइल खुद क्या है, लूप है। लेकिन लूप के अंदर एक कंडीशन चाहिए मुझे। लूप कब तक चलाना है? जब तक कंडीशन ट्रू रहे लूप चलाना है, जब कंडीशन फेल हो जाए तो लूप ख़त्म करना है मुझे। तो अब मैं मार्कशीट के प्रोग्राम पे वापस आ रहा हूँ कि मैं अब उसको लूप में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि ये तो एक स्टूडेंट की मार्कशीट प्रिंट करेगा, और उसको प्रिंट करने के बाद कहाँ गया वो, जो मैंने ये था वो प्रिंट किया हुआ, ठीक है। ये क्या करेगा, ये तो एक दफ़ा आएगा ऊपर से नीचे की जानिब, और ये सब काम करेगा, और यहाँ तक आते आते ही ख़त्म कर देगा। तो एक स्टूडेंट की मार्कशीट प्रिंट करेगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये 10 स्टूडेंट की मार्कशीट प्रिंट करे, तो मुझे इसके अंदर एक लूप बनाना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे बनाता हूँ लूप। इसमें मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके समझाऊंगा। This program will print the mark sheet of one student. If I execute the program, line number 1, 2, 3, 4, 5, and last line will be executed, and at these brackets, the program finish. It means a complete mark sheet of one student is printed. If I want to print the mark sheet for 10 students, so one mark sheet will be printed, then next mark sheet will be printed, then next mark sheet. After completing the 10 mark sheets, the program will stop. Or after completing the 5 number of mark sheet, the program will stop. So I have to make some changes in this program. So let me explain that changes. I'm sorry.
मुझे कुछ स्पेस चाहिए, ये मैं थोड़ी बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। जी आप सवाल भी कर लें साथ साथ, अभी मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पॉज कर दी है। जी मेहर जवाद सवाल पूछ रहे हो तो पूछ लो। सॉरी सर, मैं क्लास में नहीं थी, मेरा नेट डिस्टॉर्शन हो गया था, लाइट नहीं है असल में, तो मैं डेटा पैकेज पे आई हुई हूँ, तो वो खत्म हो गया था, मैंने दोबारा करवाया है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैं क्लास में नहीं थी उस वक्त। तो उसमें नज़र तो आ रही थी आप मुझे, अगर वो मसला ये आ रहा है ना कि आप अगर मीटिंग में ही नहीं है तो वो तो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब वो मीटिंग में है इसलिए मैंने सवाल कर लिया था। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गेम पैकेज करवाया है। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। नाउ कम टू द पॉइंट कि जी अगला हम ये समझा रहे थे आपको कि इसको मैं लूप में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो लूप में जाने के लिए I have to change the first line, this void main void, and I will take this line outside. Outside where? Outside this line. I want to introduce a line here, void main void. Coming outside from here and comes in here. Again, a test condition. One is less than 5, yes. Another mark sheet is printed and the value of I is increased by 1. Then it comes to the A and join here. Value of I will be 2. 2 is less than 5. Another mark sheet will be printed. Then it in the A, 3 is less than 5. Yes, another mark sheet is printed. 4, another I plus 4 plus 1 becomes 5. Comes to the A, 5 is less than 5. Conditions becomes false. If condition becomes false, it goes outside the loop. So which statement is outside the loop? Outside the loop. This bracket is outside the loop. When it goes to the outside the loop means program will vanish. तो आफ्टर will ends. जी आप पूछें, आप ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। प्रोग्राम थोड़ी सी एडिट करनी पड़ी थी मुझे क्योंकि वो वेरिएबल डिक्लेरेशन हमेशा लूप से बाहर होती है, क्योंकि वो काम जो एक बार कराने हैं वो लूप से बाहर रखते हैं और वो काम जो बार बार कराने हैं वो लूप के अंदर रखते हैं। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के जो काम थे ये लूप से बाहर होने चाहिए थे, इसलिए पहले ये अंदर आ रहे थे, फिर मैंने एडिट करके इन्हें बाहर निकाल दिया और फिर वायर को शुरू किया मैंने। अब पूछ लें, कोई सवाल पूछना है तो। ये 5 मार्कशीट प्रिंट करेगा या 4? 4 करेगा। 5 0 से नहीं, ये 5 करेगा क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। पहली मार्कशीट को ये 0 समझेगा, फिर 1 2 3 4, जैसे ही 5 होगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 को भी प्रिंट कर देता ना तो फिर 6 मार्कशीट्स होती। तो क्योंकि लेस देन लगाया हुआ, अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू कर दूंगा तो फिर वो 5 इसके बजाय 6 कर देगा फिर वो। और कोई सवाल? जी उसामा हुसैन पूछे। सर यहाँ पे हमने इफ एल्स यूज किया, यहाँ पे हम लोग स्विच भी तो यूज कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, स्विच अभी पढ़ाया ही नहीं है तो कैसे करूंगा। अच्छा नहीं पढ़ाया, जब मैं स्विच पढ़ा दूंगा तो फिर मैं कराऊंगा। और कोई सवाल? सर हमें मालूम कैसे होगा ये 5 मार्कशीट एक दूसरे से अलग है? वो इसमें हो सकता है कुछ बच्चों का ए बनाओ, कुछ का बी बनाओ। हाँ, एक वक्त में एक मार्कशीट नजर आएगी, फिर दूसरी मिट जाएगी और फिर नई उसके ऊपर आ जाएगी एंड सो ऑन। जी एनी अदर क्वेश्चन? तो अभी देखिए नॉलेज बढ़ेगी आगे, अभी इनिशियल वर्जन्स हैं प्रोग्राम्स के, प्रोग्रामिंग के, तो लेकिन ये कि इन नॉलेज को हम एक्सटेंड करते जाएंगे। तो आज हमने नई चीज़ें क्या सीखी हैं? आज हमने सिलेक्शन लॉजिक पे काम किया है, कंडीशन। इस प्रोग्राम में ये सिलेक्शन लॉजिक है
जिसमें हम यहाँ कंडीशंस लगाए हुए हैं, बहुत सारी सिलेक्शंस हो रही हैं यहाँ पे। और ये जो वाइल है ये एक रिपीटेड लॉजिक है। ये खुद ब खुद रिपीटेड लॉजिक की खासियत ये है, जब मैं वाइल लगाता हूँ तो स्टेटमेंट्स खुद ब खुद रिपीट हो जाते हैं। जहाँ से ये मैं निकाला हूँ ना, ए से बाहर निकल रहा है, ये ए से दोबारा अंदर जा रहा है, तो ये कौन कर रहा है? तो कंपाइलर को खुद पता है कि यहाँ से लूप शुरू हुआ था, यहाँ लूप खत्म हुआ है, तो लूप को बार बार कराना है। कितनी बार कराना है? जब तक आई की कीमत छोटी है 5 से, तो लूप कराना है। जैसे आई की कीमत 5 के बराबर हो जाएगी या 5 से छोटी बड़ी हो जाएगी, तो लूप से बाहर चलेगा। लूप से बाहर कौन सा है? ये वाला काम लूप से बाहर है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और एनीवन हैज अ जी सर, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो हर डेटा टाइप पे इस्तेमाल हो सकते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर हाँ हो सकते हैं। जैसे हमने अभी इंट, फ्लोट, वॉइड जैसे करें, और भी जो स्ट्रक्चर होते हैं डेटा टाइप्स, उनमें भी यही है ना इस्तेमाल हो? जी ऐसा ही है, हो सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कोई है? जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर C++ कंपाइलर यूज करता है इंटरप्रेटर? कंपाइलर। अच्छा, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर का फर्क क्या होता है? ये मैंने लेक्चर 1 में समझाया था। कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में फ़र्क ये होता है कि कंपाइलर जो है वो तमाम लाइंस का ट्रांसलेशन कर लेता है अलग, और फिर उसको जो है एग्जीक्यूशन बाद में करता है। लेकिन इंटरप्रेटर एक लाइन का ट्रांसलेशन करता है और उस पर फिर एक्शन करता है, फिर दूसरी लाइन का ट्रांसलेशन, यानी टेक्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ करता है। लेकिन कंपाइलर सारे प्रोग्राम का ट्रांसलेशन पहले कर लेता है, और फिर ट्रांसलेशन करने के बाद फिर वो जब पूरी ट्रांसलेटेड फाइल सेपरेट हो जाती है उसको रन कर देता है। ये मेन फर्क है। क्लियर है सर। और कोई सवाल है किसी का? देखें, आज का लेक्चर इंतहाई अहम लेक्चर है, क्योंकि इसमें ही आपको मेन चीज़ें समझाई गई हैं। इसके बाद तो बस से फिनिशिंग रह जाएगी। मतलब समझें, इस कोर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का है। अब चीज़ें एक्सटेंड होंगी, आगे बढ़ेंगी, लेकिन ये बेस लेक्चर है, और इस बेस लेक्चर को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कहूँगा ये इसकी रिकॉर्डिंग को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार सुने, और इसकी एक एक लाइन, अगर मैंने ये लाइन यहाँ लिखी हुई है ना, ये मैंने नीचे कर दी, बिल्कुल बिगड़ जाएगा, ये सारा काम बिगड़ जाएगा। ये लाइन अभी मैंने देखा था ऊपर से नीचे की हुई थी अंदर, तो पूरा एरर आ जाएगा। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं कि कौन सी लाइन पहले, कौन सी बाद में, कौन सी बीच में, कौन सी आखिर में, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मिसाल मैं पहले भी दे चुका था कि अगर 3-4 काम आपने लिखे हुए हैं, जिसकी सिंपल मिसाल मैंने दी थी, नमाज पढ़ लें और वज़ू कर लें, 2 काम लिखे हुए हैं। अगर मैंने लिखने में नमाज पढ़ने पहले लिख दिया है, वज़ू करना बाद में लिख दिया है, तो गलत हो गया ना ये। अब कोई नमाज पढ़ ले बाद में वज़ू कर ले, तो ऐसा कैसे होगा? तो नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ लाइनों की सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो काम हो रहे हैं, किस स्टेज पे कौन सा काम कराना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अफ्तार पहले कर लिया, फिर इसके बाद सहरी कर ली, फिर रोज़ा रख लिया, तो सीक्वेंस आउट हो गई, नहीं हो गई? तो सीक्वेंस है, पहले सहरी करनी है, फिर फास्टिंग करनी है, फिर अफ्तार करना है। तो यही तीन स्टेप्स हैं। अगर मैं किसी ने पहले उल्टे सीधे कर दिए तीनों काम, तो रोज़ा माना जाएगा? कभी भी नहीं माना जाएगा। ऐसे प्रोग्राम में भी है, तीनों काम आगे, 4-5 काम, एक भी काम आगे पीछे कर दिया, टोटल बाद में निकाल लिया, परसेंटेज पहले निकाल ली, कोई मीनिंग बनेंगे? कोई भी नहीं बनेंगे। पहले टोटल होगा, जब क्योंकि परसेंटेज टोटल से कैलकुलेट हो रही है। ये इनपुट मैंने बाद में करा दिया, टोटल पहले निकाल लिया, निकाल ही नहीं सकता जब तक इनपुट नहीं आएगा वेरिएबल में। मैं प्रिंट वो कैलकुलेशन कैसे करूंगा? परसेंटेज निकली नहीं, मैं ग्रेड निकालने बैठ गया, कैसे निकाल लूंगा? तो ये हर काम को आप अपने जहन में फिट करें, और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो कि भाई ये काम मुझे इस वक्त करना है, ये काम मुझे इस वक्त करना है, ये काम मुझे इस वक्त करना है। जरा सा मैंने आगे पीछे कर लिया ना अपने कामों को, तो या तो मुझे लॉजिकल एरर मिलेगा या मुझे सिंटैक्स एरर मिलेगा। कहाँ गया भाई? ये रहा लॉजिकल एरर। एरर्स बताए थे मैंने, लॉजिकल एरर या सिंटैक्स एरर।
इन 2 एरर्स में से कोई एक और एरर मिल जाएगा मुझे। तो मुझे एरर से बचना है। और बाज़ औक़ात क्या होता है, लॉजिकल एरर में तो पता करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं बताया था प्रोग्राम रन तो हो रहा है लेकिन जवाब सही नहीं आ रहा, आंसर सही नहीं आ रहा, आंसर गलत आ रहा है। तो अगर आंसर गलत आ रहा है, जैसे मैंने देखिए लॉजिकल एरर की मिसाल बता रहा हूँ कि ये मैंने गलती से यहाँ माइनस लगा दिया, मैं टाइपिंग कर रहा था और मोबाइल फ़ोन में मैसेजेस भी देख रहा था, तो मुझे टाइप प्लस करना था, मैंने माइनस गलती से टाइप कर दिया और मैं आगे चला गया, गौर नहीं किया मैंने। अब जब मैं परसेंटेज और ग्रेड देखता हूँ गलत आता है, बड़ा परेशान रहा मैं कि भाई ये ग्रेड क्यों गलत आ रहा है, हर चीज़ तो मैंने सही लिखी है। बाद में पता चला कि भाई लॉजिकल एरर था, वो तो बताएगा ही नहीं कंपाइलर, तो मुझे यहाँ प्लस कर दूंगा मैं, सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए ठीक है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, आज यहीं तक ही रखें, काफ़ी हो गया ये, अच्छा खासा लेक्चर हो गया। अब भी अगर सवालात हैं पूछ लें, वरना फिर मैं मीटिंग खत्म करूंगा। सर ये एक्चुअली प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको हम टाइप कर सकते हैं उसके अंदर देव? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बस वो जो टाइपिंग के क़वानीन और ज़वाबित बताए थे वो फॉलो कर लीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज़ आप चला सकते हैं इसको। ठीक है सर। अच्छा, रमज़ान का टाइम में आप लोग ये इसमें क्या करेंगे रमज़ान के टाइमिंग में? रमजान पे सर एक्चुअली आपसे पूछना था, लाइक इस्लामिक की मैम ने भी मना कर दिया क्लासेस नहीं लेंगी, और कैलकुलस की मैम भी कह रही थी बट कंफर्म नहीं करा, तो आप भी अपना सर बता देंगे कैसे आप सेट करेंगे? भाई मैं ये समझता हूँ तुम्हारी क्लास नहीं ली और रोज़ा रख लिया तो अल्लाह ताला की नज़र में मेरा रोज़ा ही मकबूल नहीं होगा, ये तो मेरा इत्तेकाद है। नहीं सर, ये कह दूं कि मैं क्लास नहीं लूंगा रमजान में, रमजान के बाद लूंगा, तो मैं जितने रोजे रख लूं मेरे रोजे बेकार है। क्यों सर, वाई? सर हमारे भी नींद खराब होगी। बेटा तुम खुद सोचो, मुझे एक चीज के पैसे मिल रहे हैं पढ़ाने के, तुम्हें तनख्वाह मिल रही है मुझे। जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं तनख्वाह ले लूं तुम गवर्नमेंट से और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पूरे करने होते हैं ना सर? बेटा क्रेडिट आवर तो ये तो लिखे हुए है ना, लिखे हुए तो यहाँ कौन पूरे कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैं तो अल्लाह वही ताला मतलब आपकी बात कहाँ, हाँ मैं वही आपकी बात कर रहा हूँ कि मतलब वो क्रेडिट और पूरा करने होते टीचर। 10 मिनट पहले क्लास छोड़ रहा हूँ तो मुझे गिल्टी फील होता है यार, मैंने 10 मिनट क्लास पहले छोड़ दी, क्योंकि जब क्लास है तो मुझे 2 ही घंटे चलानी चाहिए। लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत मैंने इसमें कर दिया और मैं बाद में अकोमोडेट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये कभी भी जहन में नहीं लाना कि रमज़ान आ जाएगा क्लास नहीं होगी। क्लास होगी और रूटीन के मुताबिक होगी और फुल मोमेंटम से होगी, टाइमिंग आगे पीछे होगी। सर आखिरी अशरे में एतकाफ में बैठेंगे उनका तो लॉस हो जाएगा। वो देखो वो मजबूरी है अपनी जगह, वो एक्सेप्शन है, वो सारे एक्सेप्शंस हैं, वो सही है। वो जो चीज़ इबादत की फ़राइज़ में अगर कहीं हर्डल करेगी ना वहाँ हम कर लेंगे, लेकिन ये रोज़े के साथ ये काम करने सर टाइमिंग वही होगी। टाइमिंग मैं तो समझता हूँ ये रख लेते सर। नहीं सर थोड़ी चेंजेस कर लें सर, 12 बजे के बाद 1-2 बजे के बाद कर लें तो बेहतर हो जाएगा सर। हमारी सुबह वाली क्लास है ना 9 वाली, एक दिन 9 बजे से होती है ना, एक दिन 11 बजे से होती है, 9 बजे वाली हम कर लेते हैं। चलिए दोनों टाइमिंग 9 बजे। यस सर, होते ही फजर के बाद टाइमिंग आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन ये कि ड्यूरेशन कम नहीं करेंगे सर। नहीं तो फजर के बाद ही रख लें, शहरी के बाद। हाँ सर ये कर लें, फजर के फौरन बाद रख लें। सारे लोग अभी सीआरस को पहले मैसेज, सीआर मुझे बता, सीआर भी इधर ही है। हाँ नहीं है तो अभी, लेकिन अभी तो इंडिविजुअल डिस्कशन हो रहा है ना, आप लोग पहले आपस में डिस्कस कर लें। ड्यूरेशन यही रहेगा, टाइमिंग आप चाहे शहरी के बाद रख लें चाहे 11 बजे के बाद रख लें। मुझे वैसे आप डेज यही रखूंगा मैं, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 ही दिन क्लास होगी। आप इनमें से डिसीजन करके मुझे टेक्स्ट मैसेज सीआर कर देंगे दोनों, तो मैं उसी मुताबिक से अब रमज़ान की कल तो है क्लास, कल मुझे बता दें, कल फिर हम डिस्कशन सर। कल सर अगर एक भी ऑनलाइन है सर, कल 9 से है ना, तो कल तो 9 बजे कर लेते हैं ना, कल तो रोज़ा नहीं है ना, क्या है सर? कल रोज़ा है सर, कल रोज़ा है सर, कंफर्म है सर। आज बैठेगी, ठीक है, तो आज से डिसीजन कर लेते हैं कि कल अगर रोज़ा होगा तो क्लास कल की 11 बजे करें सर, फजर के बाद सर। चलिए कल अगर कल रोज़ा होगा तो सब फजर के बाद सर। कल 11 बजे आईसीटी की क्लास है। बस ठीक है ना, फजर के बाद अगर रोज़ा हुआ तो। सर अगर कोई भी टीचर क्लास नहीं ले रहा हो तब भी आप लेंगे? नहीं सर, फजर के सही है, फजर के बाद सही है। ये तो हम वाइफ तो सेटिस्फाई हैं, बट सर कल का भी तो देखना पड़ेगा कि फजर के बाद वो लोग सही हैं या नहीं।
अरे रोजे के भाई लिए तो सभी सर उठेंगे का ना सब्जेक्ट यार। तुम लोग फजर के बाद पढ़ लोगे, फिर आईसीटी के लिए तो 11 बजे उठोगे ना, कल 9 बजे रखवाओ फिर सीधे सीधे। अबे नहीं भाई, इतने घंटे सोएगे भी नहीं क्या, 11 बजे उठेगे आराम से। सर 9 बजे सही कर है लो सर, यार कल मत। कल का 9 बजे कर दे क्योंकि 11 बजे भी क्लास है। टू क्लोज दिस डिस्कशन आप लोग कर लें। अगर कल रोजा होगा तो मैं कल की क्लास तो 12 बजे या 1 बजे मुझे टेक्स्ट मैसेज शेयर कर दीजिएगा। रोजा होगा तो मैं 12-1 बजे कर दूंगा कल, फिर बाद में हम डिसीजन कर लेंगे। ठीक है, कल मैं ओके फजर सर। के कल की क्लास में 12 या अगर रोजा हुआ तो 12-1 बजे होगी और रोजा नहीं हुआ ओके तो सर। 9 बजे होगी। ठीक है, दैट्स